ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولڈ اینڈ ہیریٹیج کشمیرس مز تہد خیر مقدم ونکس کاٹھی دروازہ میر عبدالمجید تو میر عبدالمجید کران آری سٹیپل کرو میر عبدالمجید صٲبس سۭتۍ کتھ یمو کتہِ ہیوٚچھ تہٕ یتھ مقامس منٛز تانۍ کِتھ پٲٹھۍ وٲتۍ یمو چھِ بے شمار آری سٹیپلس منٛز کرو مزید کتھ میر عبدالمجید صٲبس سۭتۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجید صٲب تُہۍ ؤنۍتو گۄڈٕ تُہۍ ٲسوا ییٚتی گۄڈٕ بسان تہٕ یتھ کارس منٛز سفرس منٛز کۭتیاہ اتار چڑھاو آیہِ؟ میں میر عبدالمجید میں اصلی خانیار کا رہنے والا تھا. میرا باپ بھی آرٹزن تھا اور ہم 4 بھائی تھا. میرا باپ کرتا تھا نقش گیری جو کاپر پر چاندی پر. بمبئی میں جاتا تھا وہ کام کرنے کے لیے سردیوں میں. یہاں بڑا کارخانہ ہوتا تھا اس کا, اس کے سلسلے میں وہ جاتا تھا وہاں. 4 بھائی تھا ہم. اس ٹائم چھوٹا تھا میں, میرے سے بڑا ایک بھائی تھا, وہ 12-13 سال کا تھا. میں پڑھتا تھا اس ٹائم, پتہ نہیں کیا 2-3 کلاس میں اسکول میں تھا. میرے کو باپ نے بولا کہ آپ گھر میں گزارا نہیں ہے, آپ کام کچھ سیکھو. اس ٹائم گھر میں محلے میں جیسا ابھی سکول ہے, پرائمری سکول ہے, ایک ہی سکول تھا. خانیار ڈسٹرکٹ میں ایک جبری سکول تھا, مگر خیر ہر ایک محلے میں تھا کارخانہ. یہاں کا کاریگری کشمیری ہنر, اس نے میرے کو ایک کارخانے پر لے کے گیا, بولا اس کو کام سکھاؤ, کیونکہ حالات گھر کا خراب تھا. وہ بیچارہ خود تھا اس ٹائم بوڑھا, وہ اس ٹائم جاتا تھا نہیں بمبئی, اس ٹائم وہ گھر میں ہی کام کرتا تھا, تو گزرا اتنا نہیں تھا. تو میرے کو کام میں لگایا. اس ٹائم یہاں بنتا تھا وول سے, آری ورک سے بنتا تھا کرول امبارڈری, پردے شردے کے بعد بننے لگا اس کے ٹیکوزی بننے لگا, کشن کورز بننے لگا اسی میں اول سے. وہ وہی کام کرتا تھا. یہاں محمد جمال تھا بہت بڑا ایکسپورٹر, حاجی جیم بٹ تھا, شام لال تھا. یہ لوگ باہر بیچتا تھا یہ مال. اس کا جہازوں کا کور بھی بنتا تھا, اس کا ٹیکوزی بنتا تھا, مگر بنتا تھا وول سے ہی, جس کو کرول امبارڈری بولتا ہے. ابھی جس کا یہ پردے شردے لگا ہو یہ وول کا بنا ہوا ہے. لیکن یہاں ایک فارن لڑی آئی ہے میرے, سمجھ لیجیے اس ٹائم میرا یہ 14-15 سال عمر تھا. میں ایک کارخانے میں کام کرتا تھا, لیکن پہلے سے میرا ہاتھ صاف تھا. سٹی جو لگتا ہے نا وہ بڑا باریک ہوتا تھا. وہ فارن لڑی آئی ہے, اس نے بولا ان کو ہم کو ایسا آدمی دے دو, ہم کو کچھ نیا تھرڈ لگانا ہے, نیا کچھ اس میں ہم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. وہ فارن لڑی بیٹھتی تھی ڈل گیٹ میں, جو ابھی بھی نیشنل ہوٹل ہے, اس میں اس کا کارخانہ تھا آری کا. اس نے بولا کہ وہ جو تھرڈ لے کے آئی خانیار میں کارخانے پر, وہ تھرڈ تھا سٹیپل تھا. وہ وول کا بنتا تھا موٹا, جس سے سویٹر بنتا ہے, دوسرا چیز بنتا ہے. یہ تھرڈ لے کے آئی تھی وہ جاپان کا تھا وہ سٹیپل. اس ٹائم مجھے کو انہوں نے بولا یہ لڑکے کو اچھا ہینڈ رائٹنگ ہے, یہ اچھا کام کرتا ہے. میرے کو آری دیا اس نے, نیچے میں ایک گبا بچھایا, اس پر رکھا. بہت فارنر تھا, کیمرہ لے کر کے وہ فوٹوگرافی کیا. ہمارا آری سٹیپل شروع ہوا. یہ کم از کم 50 سال کا بات ہے. تب سے پہلے نہیں تھا, تب سے آری سٹیپل نہیں تھا. آری ورک تھا, مطلب وول سے بنتا تھا. اس ٹائم آری سٹیپل نے جنم لیا. ہم یہ کہیں گے کہ اس فارن لیڈی نے اس میں نیا کیا. اس کے بعد بننے لگا یہ انڈیا میں بھی, لدھیانے میں بنا سٹیپل ورک اتنا فٹ ہوا, اس میں بننے لگا ایمبرائڈری کا مطلب ہے کوٹ بننے لگا, کیپ بننے لگا, ہاؤس کوٹ بننے لگا, ٹرنگلر بننے لگا, پنچھو بننے لگا, اسٹول بننے لگا, شال بننے لگا, ڈریس مٹیریل بننے لگا, کفتان بننے لگا. یہ بہت ایکسپورٹ جاتا تھا, اس کا بڑا ڈیمانڈ بن گیا. یعنی اتنا پیک پر چلا گیا یہ کام. ڈائننگ ٹیبل سیٹ بننے لگا, لنچن سیٹ بننے کاٹن پر. یہ ڈائننگ ٹیبل تھا, اس میں لاسی ڈیزائن ہوتا تھا, چنا بھی بہت مال جاتا تھا ہمارا. ڈائننگ ٹیبل سیٹ, بیڈ کور, سنگل بیڈ کور, ڈبل بیڈ, ٹیکوزی تک بہت چمکیلا ہوتا تھا یہ سٹیپل کام. اس وقت بھی ہے. اپنا کارخانہ لگایا. جب میں بڑا ہو گیا اپنا کارخانہ لگایا, میں نے کاریگروں کو پکڑا. اس کے بعد میں یہاں گورنمنٹ امپوریم شروع ہو گیا, شیخ صاحب نے لگایا یہاں ریزیڈنسی روڈ میں جو ابھی بھی ہے. وہاں انہوں نے بھی اپنا کارخانہ لگایا. کہاں؟
नाइट कदल में था सलाम पीर, एक नामी बहुत नामी महाराजा का एक मिश्रीमाल था, वो एक मिनिस्टर जैसा था, वो सलाम पीर था जी। उसी का जो बहुत बंगला था, उसका बगीचा भी था, उस वो जो है एम्पोरियम में किराया पर, वहाँ उससे बहुत बड़ा कारखाना लगाया। कारपेट, पेपर माशी, सोजनी, आरी काम, स्टेपल काम, हर एक कारखाना वहाँ लगाया उन्होंने। वस्तुकार साहब बैठा, मैं भी वहाँ ही काम कर बैठा। उसी कारखाने में गवर्नमेंट एम्पोरियम में काम करता था मैं कम से कम 10-15 साल। उसके बाद गवर्नमेंट एम्पोरियम के बाद मैंने अपना कारखाना लगाया। उसका रजिस्ट्रेशन मेरे को आज से 40 साल पहले गवर्नमेंट एम्पोरियम नहीं किया। उस टाइम मेरे पास था 10-12 आदमी जिनको मैंने सिखाया था, कारखाना चला था। करते करते मैं इतना डेवलप उसमें कामयाब हो गया, मैं ये माल लेकर के खुद गया, फिर कलकत्ता भी खुद गया, दिल्ली भी खुद गया, बम्बई भी। उससे मेरा मुलाकात हुआ है कलकत्ता में ज्योति बासु है उसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ। इंदिरा गांधी को भी मैंने दिया है एक बार बना के, यहाँ पोर्ट बनाया मैंने लैंडस्केप पर, उसको मैंने 5 नंबर कोठी में दिया है, वो 82 में समझा आई थी। वह शेख साहब ने मेरी नकदा दिया इनाम, उसमें 1500 रुपया उस टाइम। उन्हें बोला सर्टिफिकेट चाहिए ना नकदा चाहिए, गरीबी था, मैंने बोला नकदा दे दो हमको 1500 रुपया। उसके बाद मैंने 2017 में मेरे को अवार्ड मिला है, मैंने एक लड़ी बनाया है, स्टेट अवार्ड। स्टेट अवार्ड, जी हाँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ नेशनल अवार्ड के लिए, अभी पद्मश्री के लिए भी मैं बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपना कोशिश जारी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने मेरे को कारखाना दिया, आप बच्चों को सिखाओ। बच्चों को मैंने 2 बार कारखाना बनाया, ट्रेन किया 10-12 लड़कियों को, उन्होंने मीर साहब मुझे ये बताइए, यहाँ तक तो सब ठीक है, अब ये जो आरी स्टेपल है, जी हाँ, इसको जिंदा मानी? जिंदगानी दो सुनिए। अब आ गए आप इस पर, इस वक्त इसका बहरान क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम यह है कि पूरा 10-15 साल से यहाँ जब से पार्टनर्स कम आने लगा तब से तो शिकार हो गया बेकारी का, यानी कम बनने लगा, ये कम एक्सपोर्ट होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मशीन ने शुरू किया है इसका नकल, मशीन ने शुरू किया नकल। वो नकल जब बना, एक शाल जो दस्तकारी से बन जाएगा 15 दिन में, मशीन ने बनाया 2 घंटों में। अच्छा, कस्टमर के पास जब आया उसको सस्ता मिला माल, अभी वो सस्ता माल पसंद करके असल माल को थोड़ा सा उससे डाउन, बाजार डाउन हो गया। लेकिन असल माल का अभी भी पसंद करने वाला है, जानने वाला है जो असली माल है। लेकिन उसमें क्या कारण हुआ, एक तो बेकारी हो गया, तब से कोरोना शुरू हुआ, तब से ज़्यादा ही डाउन हो गया। तीसरा, यहाँ हर साल आता था टूरिस्ट, उसमें भी कुछ काम हो जाता था, उसमें भी 2-4 सालों से बड़ा बाजार ख़राब है, डाउन है। आहिस्ता आहिस्ता जितना भी कारीगर है उन्होंने छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ना शुरू किया। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारा जो डिपार्टमेंट है आपका हैंडक्राफ्ट डिपार्टमेंट, वो डायरेक्टर भी बड़ा कोशिश में है अभी क्या है। लेकिन हमारा इसके लिए मशवरा ये है कि अगर हम उनको, गवर्नमेंट को बोलता है इसके लिए हम अभी मशीन तो वापस नहीं हो जाएगा, मशीन का माल बंद नहीं हो जाएगा। मशीन को लिख लीजिए, मशीन का माल है ये चीज़ मशीन का है। ये जो हमारा अब गवर्नमेंट ने एक मेहरबानी किया है, 3 सोसाइटी बना है यहाँ जिसमें जाई स्टाम्प लगा है, गवर्नमेंट ने हमको अलाउड किया है। जाई जो मार्क है वो हम स्टाम्प लगाता है पश्मीने शाल को, हाँ ये जाई है। जाई स्टैम्प जब लग जाएगा तो कस्टमर को पता चलेगा ये जाई है, तो ये हाथ का बना हुआ। इससे कस्टमर को मिलेगा सही चीज़। कस्टमर को चाहिए, उसको चाहिए कि स्टैम्प देखेगा, ये जिसमें स्टैम्प होगा वो ले लेगा, वो अच्छा रहेगा कस्टमर के लिए। क्योंकि यहाँ अगर हमारा ये आदमी है, कोई दुकानदार है, वो इतना झिझक नहीं करता, इतना ईमानदारी नहीं करता है कि अगर वो बोलेगा कस्टमर को, जो दिल्ली से आएगा, बम्बई से आएगा, उसको बोलेगा ये मशीन का माल है या हाथ का माल है। अब उसको एक है वरासत, तहफ़ुज़, तीसरा है मीरास, और भी एक बनने वाला है कॉपर वेयर्स में। इंशाल्लाह ये जब काम शुरू हो जाएगा, जाई लग जाएगा, मेरे को लगता है बहुत मदद होगा कश्मीरी आर्ट का। मीर साहब, मैं आपसे जी हाँ। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने ये जिक्र किया है कि मशीन मेड और हाथ का, हमें ये खतरा तो नहीं है जैसे हम हाथ का जो बनाते हैं उसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, उनके घर रोजी रोटी इससे चलती है। अगर यहाँ से हम हाथ का लगाएंगे, यहाँ से मशीन मेड का लगाएंगे, इसका मुझे थोड़ा बताइए कि इसका हल क्या है? हल इसका हमको यही लगता है कि अगर इसके लिए पलट, जैसा हमारे इधर में एम्पोरियम है, उसमें हाजी खास का काम बिकता है, हाँ,
ऐसा ही अगर और भी एक दुकान बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा, इंडस्ट्री हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट जो है, अगर वो किसी जगह हमारा हम उनको बोलता है आप जीआई मार्ट लगाइए किसी जगह या हट लगाइए, उसमें खाली खाद का काम रहेगा, ऊपर में नीचे में रहेगा एक वर्कशॉप, वहाँ हम सिखाएगा। अभी नौजवान बैठा है हमारा बहुत, गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा है वो हमको नौकरी दे दो, हम उनको फ्री दिखाएगा, आओ देखो। लेकिन गवर्नमेंट भी उनको कुछ हेल्प करना चाहिए, वजीफा देना, मगर बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को नहीं। बच्चा टाइम पास करता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा आएगा इसमें, अगर कोई पढ़ा लिखा आएगा वो हमसे ज़्यादा डेवलप करेगा। ये अभी क्योंकि उसके पास नॉलेज है, कंप्यूटर का ज़माना है, हमारे पास खाली तजुर्बा है। वो जब तालीम इसके साथ होगा वो बार बार तक पहुंचाएगा। वो जब 4 आना पैसा कमाएगा ज़्यादा, उसको जब मिलेगा वो क्यों करेगा दूसरा काम। देखिए मेरा काम है, एक तो एक चीज़ है, अगर कोई आदमी ये एक सब्जेक्ट अपनाएगा, नौजवान एक पढ़ा लिखते हैं, सब अभी बोलता है हमारा बच्चा बन जाएगा डॉक्टर, सब बोलता है हमारा बच्चा बन जाएगा इंजीनियर। जब डॉक्टर और डॉक्टर ही बन जाएगा तो इलाज किसको करेगा। अगर बिजनेसमैन बन जाएगा, हम तो बिजनेसमैन है, मैंने 3 बच्चों को ग्रेजुएशन कराया इसी आरी पर, ठीक है, मकान बनाया इसी आरी पर। बाप का इतना टाइम मेरा नहीं था, मैं क्यों नहीं शुक्रगुजार रहूँगा। अल्लाह ने मुझे इसमें दिया है, मैंने तवक्कल किया, इसमें मैंने डेवलप किया, फिर अपने आप बिक्री करने भी लगा जब मैंने ये काम सीखा। अगर ये नौजवान मेरे तरफ देखेगा, इसने 3 बच्चों को पढ़ा है, इसमें मेरे को लगता है इंजीनियर इतना नहीं कमाएगा। जब नौजवान जब ये काम सीखेगा, इस गरज से मैं यही काम करूंगा, वो 10 नौजवानों को और रोजगार दे सकता है। इस दौरान आपने कितनों को ये हुनर मेरे दिया को लगता है पूना से भी लड़की आया मेरे पास, गवर्नमेंट ने भेजा, उनको भी सिखाया मैंने। अभी पूना का लड़की पसंद करता है सीखने के लिए, दिल्ली का लड़की आता है, कॉलेज लड़की मेरे पास आता है, गवर्नमेंट हमको उनको भेजता है, मैं उनको सिखाता। यहाँ का लड़की लोग क्यों नहीं सीखेगा, यहाँ का बच्चा क्यों नहीं सीखेगा, क्योंकि हमारा ये काम है। ये तो यहाँ जन्म लिया, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ लाया ये कि कश्मीर खूबसूरत है, या तो सेब से या कश्मीरी दस्तकारी से। फॉरेन का म्यूजियम में आप जाइए, वहाँ क्या है, कश्मीर का शाल। हमारे बुजुर्ग ये इसके लिए तवज्जो करना चाहिए, गवर्नमेंट भी नौजवानों को ही दीजिए इसका ट्रेनिंग, समझा कि नहीं। जब हम ट्रेनिंग उनको दे देगा वो बन जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट होना, अगर पॉलिटिकल कॉलेज है उसमें भी सब्जेक्ट रखना चाहिए, हम उनको फ्री करेगा काम जितना अवार्ड। यम मीर अब्दुल मजीद साहब, यम छ आरी स्टेपल बड़ माहिर कारीगर। यम छ वनान दपान चूंकि तुम बूजू युंद इब्तिदा पे यमो कत पे शुरू कोर्मुत वनुक तान, युंद वनुन छ यह कि अगर नौजवान नस्ल युस अस पोर्मुत लिखमुत छ, अगर तिम अस कुन यहन अस हेचनावोक। सर मे कत कर तुम सड़ा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तुम शुक्रिया करा। मे गुजारिश तुस मीडिया वनस बड़ काम करान, तुम पज कर कश्मीर आर्ट तुल बड़ा मेहनत। चलो शुक्रिया।